Okay, so welcome all. Last time we were on this slide, need of research in Ayurveda, and we had talked about the opposers of need of research, those who are opposing research in Ayurveda, and we were talking about supporters. Hello? हाँ कर दिया. Okay, so last time we were talking about supporters of need of research in Ayurveda. तो सबसे पहले गणनाथ सेन को हमने ये कर लिया था. गणनाथ सेन इज अ टीकाकार जिन्होंने बोला है कि पुराणम प्रविलयंती नवीन प्रादुर्भवंती. मतलब पुराना जो भी है धीरे 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 चला जाएगा और नया जो भी है वो उसको रिप्लेस करते जाएगा. देन वी स्टॉप एट चेंज इन फैक्टर्स, दैट इज लाइफस्टाइल, फूड एंड एक्सपोजर. And I was talking about how lifestyle, food, and exposure will change the or requires the need or is needed in the research of Ayurveda. For example, old lifestyle, we were more exercising, more walking, we were working in the farms, we were running out for food. Today's lifestyle, we go to the we go online, order something, and it comes doorstep. Okay, take the case of food. So in old cases what we had to do, एग्रीकल्चर होता था, उसके बाद धान निकाल लिया जाता था, फिर उसको स्टोर करके रखते थे. So usually the food which we used to eat or the grains which we used to eat were old grains. Today धान निकाल लिया जाता है और immediately मार्केट में अवेलेबल हो जाता है because the transport has increased. So there is very less time between the reaping of the food and the eating of the food. देन एक्सपोजर टू वेरियस थिंग्स लाइक केमिकल्स. आज हमारे आसपास केमिकल्स इतने बढ़ गए हैं, तो वी रियली नीड टू नो what are the effects of all these factors into various diseases, our regular lifestyle, our health. So because there is a lot of change in factors, अलग अलग factors हमारे लाइफ को आज से 10,000 साल पहले कोई फर्टिलाइजर होता ही नहीं था, या पेस्ट मारने वाला कोई इंसेक्ट मारने वाला कोई केमिकल होता ही नहीं था. तो वेदर दैट इज अ कॉज और दैट इज एक एग्जांपल इसका ये ले सकता हूं कि कोल टार या जो रास्ते पे डांबर डाला जाता है, उस डांबर से एक एक स्वीटनर बनता था जिसका नाम था सैक्रिन. तो ये जो सैक्रिन है ये बहुत साल तक यूज हुआ, मतलब 50 60 100 साल तक शायद यूज हुआ. Then it came into light that this saccharin is a cause of increasing in cancers in those who are taking artificial sweeteners instead of sugar. कैलोरी कॉन्शियस होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें सडनली ये कैंसर कॉजिंग केमिकल की वजह से कैंसर्स का ये बढ़ने लगा. सो इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल, इट वॉज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फैक्टर विच ही वॉज टेकिंग. उसके बाद सैक्रिन बैन हो गया. सो सैक्रिन और सच केमिकल्स वेयर नॉट देयर 10,000 ईयर्स बैक, इसीलिए शायद उनका कोई पर्टिकुलर डिसीज के कॉज में मेंशन नहीं है. पुराने टाइम पे अस्थि क्षय इसका ज्यादा मेंशन नहीं मिलता, लेकिन टुडे वी फाइंड दैट ऑस्टियोपोरोसिस इज बिकमिंग वन ऑफ द कॉमनेस्ट diseases in especially in females who are more than who have post menopause, जिनका 45-50 years हो गया है. now why is this that उस जमाने में नहीं था इस जमाने में है? because one of the reasons which may be is जैसे हम मतलब काम करते हैं, या because bones grow only when you bear weight. अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो व्हाट हैपेंस इज पहले प्लास्टर बांध के रखते हैं, फिर जब प्लास्टर उतारते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्यादा चलने को बोलते हैं. दैट इज अ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, कि धीरे धीरे चलते चलते उसके पाँव पर वेट आते रहे और जैसे जैसे वेट आए वैसे उसका पाँव जो है दैट शुड बिकम स्ट्रोंगर. तो इसीलिए these all factors, now what happens is now
we are into such a lifestyle which is very very comfortable. We don't walk, we don't jog, we don't stand. मतलब बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि if you are working in a AC office you don't even stand. Leave walking, you don't even stand. So there is a lot of change in lifestyle, lot of change in food, lot of change in exposure to various factors like chemicals or like various types of colors, food colors जो आते हैं वो, या फिर various types of new clothes which we are wearing. क्लोथ्स का अगर एग्जांपल दो तो यू माइट बी एलर्जिक टू अ पर्टिकुलर क्लॉथ. सो एक्सपोजर हमारा इतना बदल गया है कि to understand whether any change in external factor is going to cause a disease, not only a disease. आज की तारीख में जब आप कोई भी ड्रग एक्सपोर्ट करते हो तो उस ड्रग के एक्सपोर्ट करने में आपको हैवी मेटल्स का एक ये करके देना पड़ता है, प्रोफाइल करके देना पड़ता है कि मेरे ड्रग में मर्क्यूरी, आर्सेनिक, ये सब हैवी मेटल जो हैं इनकी कितनी मात्रा है. तो पुराने ज़माने में जो भी ड्रग्स जमा करते थे वो कहाँ से जमा करते थे? फॉरेस्ट से. आज के टाइम पे क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज कम अप. सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदमी कहाँ करेगा? आदमी अपने घर के पास करेगा. पास करेगा तो वहाँ से रास्ते जाएंगे, वहाँ पर पोल्यूशन होगा, वो पोल्यूशन काला हवा जो है वो, या वो एयर वो प्लांट इनटेक करेगा तो उसमें हैवी मेटल्स आने हैं. So there are a lot of external factors which can not only not only cause a change in diseases in health, but also something which is very very rare like the growth of a plant. स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, या कोई डिसीज कॉजिंग चीज आ सकता है, या कुछ नहीं तो हैवी मेटल्स आ सकते हैं. सो ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी एनालाइज्ड फर्स्ट टू डिड्यूस. इसके बारे में कुछ भी समझने के लिए इन सब फैक्टर्स का एनालिसिस होना जरूरी है. तो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स इन सपोर्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज न्यू डिस्कवरीज आर नॉट यूटिलाइज्ड. नई जो भी डिस्कवरीज हुई हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए, सो दैट वी कैन गेट बेटर, cheaper and faster treatment. Now how are we going to utilize? Okay, let us take the case of this अस्थि धातु क्षय only, osteoporosis. तो अस्थि धातु क्षय हुआ है या अस्थि धातु क्षय नहीं हुआ, इसके लिए पुराने टाइम पे अस्थि धातु क्षय का अगर आप श्लोक देखेंगे तो अस्थियन अस्थि तोदाह सदनम दंत केश नखादिशु. मतलब क्या कि हड्डियों में दर्द और दंत, केश और नख का सदन, सदन मतलब गिर जाना. तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे हड्डी में अगर 100% हड्डी होनी चाहिए तो उसके जगह पर अगर मेरी 10%, 90% रह गई, 10% खराब हो गई या क्षय हो गया, तो क्या मेरे दांत गिर जाएंगे या नख और केश सदन हो जाएगा? नो, दिस इज गोइंग टू हैपन सम मे बी 50-60. जब ऑस्टियोपोरोसिस इतना हो जाएगा या हड्डी इतनी नाजुक हो जाएगी जो हार्बर्ड टीथ है वो भी हिलना चालू हो जाएंगे. तो दिस इज समवेयर मे बी 60-70% क्षय हो जाएगा. तो डू वी नीड टू वेट टू फाइंड अ ड्रग फॉर अस्थिक्षय? अस्थिक्षय में मैंने कोई अच्छा चीज निकाला है तो मुझे उसका रिसर्च करना है या मुझे उसके इफेक्ट के बारे में देखना है. इज इट पॉसिबल टू डू अस्थिक्षय वाला ड्रग रिसर्च विदाउट गोइंग इन फॉर पेशेंट्स और विदाउट आस्किंग पेशेंट्स टू वेट 70% अस्थिक्षय हो जाने दो, दांत गिर जाने दो, फिर उसके बाद में दवाई दूंगा, फिर देखेंगे कितना फायदा होता है? नो, वी हैव अ BMX डेक्सा स्कैन अभी हमारे पास, जिसको बोन स्कैन भी बोलते हैं, बोन स्कैन बोलते हैं. तो डेक्सा स्कैन अगर किसी ने देखा हो तो डेक्सा स्कैन में वो इमीडिएटली बता देता है कि भाई ये एरिया में 30% अस्थिक्षय है, ये एरिया में 20% है, ये एरिया में 60% है. सो दिस इज समथिंग विच वी विल यूटिलाइज सो दैट वी विल हैव बेटर, चीपर एंड फास्टर. डेक्सा स्कैन यूटिलाइज करने का फायदा क्या है? फास्टर ट्रीटमेंट. माई ड्रग इज प्रूव्ड without even going in for patients who have 60 and 70% अस्थिक्षय. क्योंकि
अगर मैंने ड्रग दिया और किसी का अगर 30% अस्तिक्ष है वो डेक्सा स्कैन में बता रहा है, और मेरा ड्रग लेने के बाद वो 30% अस्तिक्ष जो है वो दैट गेट्स बेटर, वो 10% पे आ गया, 15% पे आ गया, तो दिस मीन्स दैट माई ड्रग इज वर्किंग ऑन अस्तिक्ष। ठीक है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट थिंग्स, जैसे मसल्स के लिए आजकल स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस नहीं, वो स्प्रिंग्स आ गए हैं टोन देखने के लिए। उसके बाद छाती का अगर कुछ है, या फिर पर्टिकुलरली फुफ्फुस पे चलने वाला कोई मेडिसिन है, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन या एक्सरे कर सकते हैं। सो ऑल दीज न्यूअर डिस्कवरीज हैव टू बी यूटिलाइज। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको कपो तक कूजन वत ही ध्वनि सुनना है। ठीक है, जब तक कबूतर हमारे छाती में बैठ के गुटर गू नहीं करेगा, हम ये नहीं मानेंगे कि इसमें छाती में ये भरा है, कफ भरा है, या अस्थमा हुआ है। नो, वी आर हियर टू यूटिलाइज न्यूअर डिस्कवरीज, and when we utilize newer discoveries, we get a better, cheaper and faster treatment. So this is one of the needs of research in Ayurveda. Now, why is it important to have research in Ayurveda? First and foremost, because we have become an open society, right? We have borders, but we frequently travel, trade, speak against these borders. आज की तारीख में जितनी पॉपुलैरिटी आयुर्वेद की इंडिया में है, उतनी ही पॉपुलैरिटी जर्मनी में है, उतनी ही पॉपुलैरिटी, it is not regulated but it is popular. It is not regulated but it is popular. It is popular because it is being sold as a food supplement, but it is popular. So we are all globalized. Now, why people sell it as a food supplement and not as a drug? Because if you want to sell it in the category of a drug, you have to do a clinical research, और clinical research में बहुत पैसा चला जाता है. And just as I said, this is all ancient knowledge. तो अगर मैं पैसा डालूंगा तो इसका रिटर्न मेरे को ही मिलेगा ऐसा नहीं है। मेरा मेरा पेपर साइट करके या मेरे पेपर को रेफर करके कोई भी दूसरा उसी फॉर्मुलेशन को एज अ ड्रग करके बेच सकता है। सो आई शुड हैव आईपी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होना चाहिए। आई शुड हैव प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, आई शुड हैव प्रोटेक्शन ऑफ फॉर्मुलेशंस, आई शुड हैव प्रोटेक्शन ऑन माय रिसर्च। कोविड में ये सब ज़्यादा इजी और ज़्यादा फास्ट तरह से समझ में आया। जैसे फाइजर का या मॉडर्ना का वैक्सीन निकला, तो वाई देवर लुकिंग, या वो जी से एक कंपनी था, गिलबर्ट या ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद नहीं, बट उन्होंने वो रेमडेसिविर निकाला। तो रेमडेसिविर, एंड वाई दे वर स्पेंडिंग सो मच ऑन रेमडेसिविर, बिकॉज दे न्यू दैट रेमडेसिविर मैंने निकाला हुआ ड्रग है, मुझे छोड़ के दुनिया में कोई भी बेच नहीं सकता। So that is why they were spending, which is not possible in Ayurveda, because this is all based on ancient knowledge. But if we have to speak in their language, if we have to explain them that this is going to happen in your body, or this is how the drug will work in your body, this is the pathway, this is the chain. So we have to speak their language, that okay, this drug interferes in the glucose pathway, or this drug reduces the current which is flowing in the nerves, or this drug will increase the bulk of the muscle. So if you want to speak in their language for them to understand, because we are in a globalized world, we need to back our things with research. We need to show that our drugs are also researched just as their drugs. The next is, because medical science is a progressive science, medical science is a progressive science, it should undergo a continuous validation. What do you mean by validation? Validation means checking. कि जैसे आपका पेपर चेक होता है, वैसे ही it needs checking. For example, जैसे why we say that medical science is a progressive science? Somewhere 150-200 years back, ये शायद डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया, या मुझे नहीं, फॉक्स नहीं, फॉक्स ने तो वैक्सीन निकाला पोलियो का, किसी ने तो डिस्कवरी किया, उसके बाद फॉक्स ने उसका वैक्सीन निकाला। उसके बाद वैक्सीन आने के बाद पोलियो पूरा, मतलब अभी तक भी पूरा मिटा नहीं है, लेकिन पोलियो मिटने के लिए कितने साल वैक्सीन देना पड़ा। एक जमाने में जब व्हेन वी वर स्टडिंग, पोलियो केसेस वर वेरी कॉमन। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994।
polio cases were very common. Are they so common today? No. आज 10 लाख 15 लाख 20 लाख में से कोई एक पोलियो दिखता है या फिर डाउट लगता है. Why this has happened? Because science has progressed. We have taken over control over polio. Smallpox vaccine eradicate हो गया है, मतलब WHO has agreed that smallpox has been eradicated from the world. दुनिया से smallpox या छोटी माता चली गई. तो this is all because we are a progressive science, and if we want to show, see, they will agree that okay ठीक है, संधिवात पे ये ड्रग 10,000 साल पहले चलता था, लेकिन क्या उस 10,000 साल पहले जो संधिवात था सेम संधिवात आज है? ओके, अगर सेम है तो क्या आपका 10,000 साल पहले चलने वाला ड्रग आज भी चलेगा? ओके, क्लिनिक्स में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे मेरे दवा पे भरोसा है, मैंने मेरा दवा दे दिया और संधिवात ठीक हो रहा है, आई एम हैप्पी. बट इफ यू वांट टू मार्केट समथिंग, इफ यू वांट टू एडवर्टाइज समथिंग, देन यू हैव टू बैक इट विद रिसर्च. अगर आपको लाना है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल, तो you should show a clinical research which is backing all this. Then only it will have a validation. Then only it will have a validation, and this validation should not be one time, it should be continuous. So because medical science is a progressive science, we have to undergo continuous validation of all the things in it. Then it should be in tandem with nature's rectification and modification. In tandem with nature's rectification and modification. मीन्स वॉट? टैंडम मतलब साथ साथ चलना, हम साथ साथ हैं, तो टैंडम मतलब साथ साथ चलना. तो नेचर ने पिछले 10,000 साल से जो भी मॉडिफिकेशंस किए हैं या जो भी रेक्टिफिकेशंस किए हैं, वेदर आवर डिसीज, वेदर आवर मेडिसिन, वेदर द वे आवर मेडिसिन इज वर्किंग इज इन टैंडम या नेचर के साथ बदला है. पिछले 10,000 साल में नेचर के साथ बदली हुई कोई भी चीज जो है, let us say for example 10,000 साल पहले we did not have any disease. I mean, अगर आयुर्वेद में कोई जैसे स्पॉन्डिलिसिस है, तो स्पॉन्डिलिसिस का बहुत रेयरली मेंशन मिलता है. अगर गर्दन की हड्डी जो है वो अगर तकलीफ में होती तो या तो खंज से है या पांगुल्य से है, कुब्ज से है. इट वाज बाय बर्थ. उसके बाद गर्दन की ऐठन का देखो, कमर में साइटिका का वर्णन आता है, ग्रुद्रसी इज देयर, राइट, बट कंधे पे मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस का वर्णन ज्यादा नहीं आता. बट टुडे वी फाइंड एवरी 4 people in 100 people are suffering from spondylosis, cervical spondylosis. Now why is that? That is because according to nature, according to the progress we have done, we are sitting in a wrong posture. We are sitting in a wrong posture because of the use of mobiles. We are using our neck more. नेक के साथ मोबाइल के, इससे एक और चीज याद आ गई, ट्रिगर फिंगर सिंड्रोम. ट्रिगर फिंगर सिंड्रोम का तो मैंने तो आयुर्वेद में आज तक ये नहीं पढ़ा, सेम टू सेम लक्षण नहीं पढ़े. वाई ट्रिगर फिंगर सिंड्रोम? बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टाइपिंग विथ अवर थंब. हम थंब से टाइपिंग करना चालू कर दिया हमने. तो that is again whatever nature demands, whatever nature has progressed, उस हिसाब से whether our medicines, हमारी वात शामक बहुत सारी दवाइयां हैं, ठीक है, चलो मान लिया वात शामक दवाइयां हैं. ट्रिगर फिंगर में वात बढ़ा हुआ होता है, ये भी मान लिया, लेकिन क्या हमारी दवाइयां जो वात शामक हैं ट्रिगर फिंगर पे चलेगी? दिस इज व्हाट मीन्स in tandem with nature's rectification and modification. One more way we can look at it is उस जमाने में जो भी फल हैं या फ्रूट हैं, उसके बाद जो सब्जियां हैं, जो अलग अलग प्रकार के धान्य हैं, जैसे जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ एक खपली गऊ बोलते थे, मतलब ब्लैक व्हीट या बक व्हीट बोलते थे उसको. वो बक व्हीट नाम का चीज जो था वो इस पे मिलता था, रेशन पे मिलता था, दुकान में मिलता था. टुडे इट हैज डिसअपियर्ड. Why it has disappeared? Because buckwheat was not a nutritious item. Buckwheat was not a solution for this food crisis. So we have shifted over to a newer variety imported from America. And now the wheat which we eat is more nutritious, more protein content. But
whether the current rise in diabetics which is going on is because of this wheat or this polished rice which we are eating. That is again going with nature's modification or nature's rectification. So that is also one of the needs of research in Ayurveda. Then the guiding fundamental principles should be validated and whatever is outdated should be removed. Guiding fundamental principles should be validated and whatever outdated should be removed. गाइडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रिंसिपल ले लिया हमने साध्य और असाध्य व्याधि का, तो जो साध्य व्याधि है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, जो असाध्य व्याधि है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए. नाउ वेदर विद द एडवांसमेंट्स इन, जैसे कोरोना का, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन अ पेशेंट, कोरोना का पेशेंट जो है वो टिपिकल पेशेंट होता है महाश्वास का या ऊर्ध्व श्वास का. तो महाश्वास को तो बोला गया है कि ट्रीटमेंट नहीं करना है. महाश्वास के पेशेंट के जैसे उसको दम लगना चालू हो जाता है या ऊर्ध्व श्वास के जैसे दम लगना चालू हो जाता है. बट वी आर स्टिल ट्रीटिंग, वी आर स्टिल पुटिंग देम ऑन वेंटिलेटर्स, वी आर स्टिल ट्राइंग टू सेव देम. So there are some principles which may have been outdated because of the progress in science, and there will be some principles which will be validated. जैसे अस्थमा में उन्होंने बोला है, what is the solution for a asthmatic patient when you go to a allopathic physician, he will say nebulizer दे दो, भाप दे दो, सांस चढ़ रही है तो भाप दे दो. He will give a bronchodilator, right? He will give something like your deriphylline, etophylline, theophylline, तो bronchodilator दे देंगे. Now bronchodilator will do what? Bronchodilator will not remove the cough from those vessels, the respiratory vessels or the bronchi. वहां से कफ निकालेगा नहीं, वो तो क्या करेगा, बस ब्रोंकाई का जो मसल है उसको थोड़ा सा लूज कर देगा ताकि जो कफ के वजह से छोटा हो रहा है पाथ, वो मसल लूज हो जाएंगे तो पाथ बड़ा हो जाएगा, बट कफ निकालेगा नहीं. इट इज नॉट एन एक्सपेक्टोरेंट, इट इज अ ब्रोंकोडाइलेटर. फॉर thereafter, after you dilate the bronchus, thereafter they will give you a mucolytic मतलब कफ को पतला करने के लिए, और उसके बाद they will give you a expectorant कफ को निकाल देने के लिए. But giving a mucolytic and giving an expectorant is not a principal part of treatment in allopathy. Allopathic treatment in asthma stops at bronchodilation. Whereas if you go to Ayurveda, अस्थमा के पेशेंट में हम क्या करते हैं, हम पहले सेंधव तेल से मालिश करते हैं, फिर सेक करते हैं, फिर अगर उसको कफ उत्क्लेश हो गया है तो वमन दे देते हैं. नाउ इफ यू गो टू एन एलोपैथिक फिजिशियन एंड इफ यू टेल हिम दैट ओके, तुम्हारे यहाँ अगर अस्थमा का पेशेंट है तो उसको नमक का पानी पिलाओ, उसको सेक दे दो थोड़ा और वमन करवा लो, तो बोलेगा क्या पागल आदमी है यार, वो इतना डिस्ट्रेस में बैठा है, उधर उसको सांस चढ़ रही है और तुम बोल रहे वमन करवा लो. तो वी रियली नीड टू चेक दैट वेदर वमन हेल्प्स इन अस्थमा और नॉट, whether woman helps in asthma or not, whether nasya helps in eye diseases or not. So there are some guiding principles and fundamental principles which need to be validated, and if they are not valid they should be discarded as outdated, something which is not yet a part of the Ayurvedic syllabus. आज भी हम मन आत्मा ये सब सीख रहे हैं. क्यों? हमारे क्लिनिक में तो आगे कोई पूछने नहीं वाला है, डॉक्टर साहब मेरा आत्मा अच्छा है कि नहीं चेक करो. So there are some principles which are outdated which need to be removed, and some principles which are current or which are working need to be validated. So that is another need of research in Ayurveda. Then we are here to explain things in a current context and chalk out the guiding principles which are applicable currently. Okay, so explain things in the current context. मतलब क्या? आप यू ऑल हैव रेड प्रमेय चिकित्सा इन थर्ड ईयर पास होके आए हैं आप लोग, तो प्रमेय चिकित्सा आपने पढ़ी हुई है. प्रमेय चिकित्सा में क्या लिखा है? प्रमेय चिकित्सा में लिखा है कि अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य आनुप औदक रसः पयांसी नवान्नपानम गुणवैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम. फिर उन्होंने ये बोला कि ये सब जो प्रिंसिपल मतलब सब जो द्रव्य हैं ये कफ को बढ़ाने वाले हैं, फिर ये कफ जाके यहाँ बैठ जाता है, फिर उसमें से ओ मतलब द्रव धातु बढ़ने की वजह से द्रव निकल जाता है, फिर ओज कम हो जाता है,
All these things are not understandable to a common man. Sir, ये ओज क्या है? We are not able to explain, he is not able to understand. So what you need to tell them that okay, these are all high calorie requirements. We are not deviating from our principles. हम ये नहीं बोल रहे कि 10,000 साल पहले ये सब निदान था, आज ये निदान नहीं है. We are not deviating from our principles, but we are trying to just explain it in a context which the person will understand. हम ये कहेंगे कि सर आपका कफ बढ़ जाएगा, तो probably only some patients will understand. But if we tell them that these are high calorie foods, इससे आपका इंसुलिन और शुगर बढ़ जाएगा, तो everybody will understand. हाँ हाँ शुगर बढ़ गया, right? So in the current context we should be able to explain. And if we want to explain in line with the current context, what is more important is to correlate. It is important to correlate. Correlate to what? Correlate to the current things or correlate to the current happenings in science. And then we can chalk out principles that okay, in diabetes, all these things, ikshurus or dahi is also something which is high in calories, और ikshurus, साक्षात शुगर, ये अगर लेंगे तो all these are basically causing diabetes because they are some things which are high in calorie which increase the insulin levels in the body, and due to which what happens is the insulin levels increase, the fat molecules start getting absorbed, and the protein sensors of insulin which are on the cells, they start getting covered with fat, or they are not properly repaired when they are deformed. And that is why we are not deviating on the principles here. We are just trying to chalk out new principles which fall in line with the current scientific advancement. Okay, so up to here, everybody is understood. If anybody is not understood, then you can ask me a question. Then we come to establishment on modern scientific parameters. What do you mean by establishment on modern scientific parameters? Now, today we know that when ALT, or what you usually call it as SGPT, तो SGPT जो है, ये SGPT जब बढ़ जाता है या अल्कलाइन प्रोटीन जब बढ़ जाता है, तो you have something which you can say as a liver failure. Your liver has started failing or your liver has started getting damaged. ठीक है, ALT, AST या SGPT, SGOT, whatever you call it. So today we need not have to wait until the liver damage frankly shows on the body, कि सभी पीला दिखेगा, आंख पीली दिखेगी, नाखून पीले दिखेंगे. No, we get a person and we do a routine test and we find that his SGOT and SGPT is increased. If his SGOT and SGPT is increased, what does it mean? It means that his liver is inflamed and the damage to the liver has started. So if we are not diagnosing something by a pita netra or pita twak or pita nakha or kshudha mandya, if we are not diagnosing something because of that, we are diagnosing on modern parameters. So if we are diagnosing on modern parameters, we also have to show that our medicines are working on modern parameters. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आरोग्यवर्धी ने दे दिया, उसका लिवर तो ठीक हो गया, एसजीपीटी से मेरे को क्या लेना देना. एसजीपीटी कुछ भी होना उसका. It has been proved that SGOT, SGPT will increase only when there is liver failure or liver damage. So if you want to prove that Arogyavardhini reduces liver damage, you have to prove that SGOT and SGPT is reduced. So you have to establish the drug on modern scientific parameters, which are the prime and the golden rule for research. Last but not the least, we are here to bring in new leads to modern medication. New needs to modern medication. Now, why modern medication needs leads? Okay, so there are, suppose I take a material and I think
दैट ओके आई टुक अल्काइल अमाइन, या मैंने कोई अमाइन ले लिया। 12वीं में अमाइन है, आई नो 4 साल हो गए हैं, शायद भूल गए रहेंगे, लेकिन अमाइन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो आपने 12वीं में, 11वीं 12वीं में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये अमाइन मैंने ले लिया, फिर मैंने उसको ग्लाइकेट कर दिया। ग्लाइकेट करके मैंने उसके 10 अलग अलग, मतलब इस ग्लाइकेशन का अलग अलग प्रोसीजर से मैंने 10 अलग अलग कंपाउंड्स बना लिए। नाउ आई नो दैट प्रोबेबली दिस ग्लाइकेटेड अमाइन, दिस ग्लाइकोसाइड, या मैंने कोई शुगर ले लिया उसको ग्लाइकेट कर लिया, जैसे ऑलिगोसैकेराइड लिया उसको ग्लाइकेट कर लिया। तो दिस ऑलिगोसैकेराइड विच इज ग्लाइकेटेड, विच इज नोन एज अ ग्लाइकोसाइड, will work on infection, will work on infection. So to understand which glycoside will work on infection, I will have to do a clinical research. Rather, if I have an amine, a glycoside, a glycol, मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 अलग अलग ड्रग सब्सटेंसेस है, नॉट ड्रग्स, सब्सटेंसेस, व्हाट यू कॉल एज द रॉ ड्रग। अगर 10 अलग अलग रॉ ड्रग है, और आई वांट टू सी वेदर अ ग्लाइकोसाइड, a glycol, a glycated amine, which of the above works on cancer, or which of the above works on your take as something simple as fever. तो आई वॉन्ट टू, मैं हर एक पे इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकता, सो आई हैव टू हैव अ लीड। लीड मतलब पकड़ के ले जाने वाला, पकड़ के ले जाने वाला। ओके, सो देन आई टर्न टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, देन आई टर्न टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये सोचता हूँ या देखता हूँ कि चलो बुखार किस किस चीज से कम होता है, तो बुखार सुदर्शन से कम होता है, या बुखार किरात तिक्त से कम होता है, या बुखार शुंठी से कम होता है। तो अगर बुखार किरात तिक्त और शुंठी से कम होता है, तो उन सबका मैंने केमिकल कॉम्पोजिशन निकाल दिया। मैंने ये देखा वेदर उसमें ग्लाइकेटेड अमाइन है, या ग्लाइकॉल है, या ग्लाइकोसाइड है। तो मुझे किरात तिक्त में ग्लाइकोसाइड मिल गया, शुंठी में मुझे ग्लाइकोसाइड मिल गया। तो अगर इन दोनों में मुझे ग्लाइकोसाइड मिला है, तो आउट ऑफ द 10 ड्रग सब्सटेंसेस, there is a high chance that my glycoside will work on fever rather than the glycol or glycated amine. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। मैं थोड़ा आज ज़्यादा हैवी वर्ड्स बोल रहा हूँ, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। तो इफ आई फाइंड अ ग्लाइकोसाइड, देर आर हाई चांसेस दैट अगर मैं ग्लाइकोसाइड के क्लिनिकल रिसर्च पे पैसा लगाऊंगा, तो मुझे जल्दी और क्विक और पॉजिटिव, quick and positive are the two things which a clinical trial will require. So मुझे जल्दी भी मिल जाएगा और पॉजिटिव भी मिल जाएगा. So this is something which will help me or lead me to modern medication. If I want to give another example, it is the case of reserpine for hypertension. So when allopathics wanted to formulate a medicine for hypertension, they looked out to सर्पगंधा. देखो कि सर्पगंधा जो है वो अगर ये कम करती है, क्या ब्लड प्रेशर कम करती है, नींद अच्छी लाती है, ब्लड प्रेशर वाला हेडेक अगर कम करती है, तो सर्पगंधा में ऐसा जरूर कुछ होगा जो ब्लड प्रेशर कम करता है. देन व्हाट आई डू अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ और केमिकल एसे ऑफ सर्पगंधा. आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने केमिकल्स हैं. तो उसमें समझ में आता है कि 15 केमिकल्स हैं. आउट ऑफ दोज 15 केमिकल्स विच इज द मोस्ट क्वांटिटी वाला केमिकल, तो समझ में आया कि रिसर्पिन नाम का एक ग्लाइकोसाइड है जो रिसर्पिन नाम का एक ग्लाइकोसाइड है विच विल हेल्प यू और विच विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर. तो फिर उस रिसर्च पिन को लेके क्लिनिकल ट्रायल करना इज अगेन अ लीड टू मॉडर्न मेडिसिन. एंड 30% ऑफ द ड्रग्स विच मॉडर्न मेडिसिन यूजेस टुडे आर बेस्ड ऑन Ayurvedic, I can't say Ayurvedic, but are based on traditional knowledge. Are based on traditional knowledge. So we are doing research for validating the principle, validating the practices. देखो कि नस्य प्रिंसिपल्स तो समझ में आ गए थे, मैंने लास्ट स्लाइड में ही बता दिए थे. वैलिडेटिंग द प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिसेस मतलब नस्य के पहले क्या मुझे पूरा स्नेहन स्वेदन करना चाहिए पूरे सिर का,
या अगर मैं सिर्फ साइनसिस का ही करूं तो रिजल्ट इक्वल आता है. I either have to do a Snehan Swedan of the whole head, or whether I do it in the karna and the face region, whether I will get equal results. So this also need to be validated. Similar is the case of prognosis. जैसे मैंने महाश्वास और कोविड का बता दिया था, क्या साध्यत्व इस 10,000 सालों में डिपेंडिंग अपॉन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बदला है या नहीं बदला है. So that is also one thing which is needed. Second is to develop safe, effective, economical and available drugs. Now safe, Ayurveda is grass, generally regarded as safe, grass. And that is why for any Ayurvedic drug, we are very lucky that we don't have to do a safety profile. जैसे रेमडेसिविर है, तो रेमडेसिविर सबसे पहले किसने खाया? सबसे पहले खाया चूहों ने. क्यों? ये देखने के लिए कि चूहे खाने के बाद या चूहों को रेमडेसिविर लेने के बाद क्या चूहे मरते हैं. सो अ सेफ्टी इज फर्स्ट एस्टेब्लिश. लेकिन अगर मेरे आयुर्वेद में लांगली नाम का ड्रग है या हल्दी है या फिर आंवला है, डू वी हैव, इफ वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग फ्रॉम आंवला, डज गवर्नमेंट आस्क फॉर अ सेफ्टी प्रोफाइल? नहीं नहीं नहीं, पहले ये साबित करो कि ये आंवला सेफ है. नहीं, बिकॉज they have agreed that any drug which is mentioned in the text is safe to consume in a way which is described in the text. So safe, effective means if we are giving two medications, we should understand which medication will work more. So effective. Third is economical. If we have two medications, which will be more cheaper to produce. एंड फोर्थ इज अवेलेबिलिटी. जैसे रेमडेसिविर है, हाँ हाँ अच्छा अच्छा बोला सबने, अवेलेबल ही नहीं. तो आई शुड हैव अ ड्रग विच इज अवेलेबल. दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ड्रग. इट शुड बी सेफ, इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड इट शुड बी अवेलेबल. तो वी नीड टू understand that whether our drug is, or the Ayurvedic drug is sufficing all these 4 characteristics. Then we should be able to explain the pharmacodynamics and pharmacokinetics of the drug. Now these two words you must have learned in Dravya Gun. So pharmacodynamics is how the drug is absorbed in the body, and how the drug acts, and pharmacokinetics is how the drug is absorbed by the body. कहाँ से कहाँ जाता है? मुंह से पेट में गया, पेट से ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से लिवर में गया, लिवर से वो मसल में गया, मसल में उसने यहाँ यहाँ ये किया, दैट इज डायनामिक्स. फिर उसके बाद वो किडनी में ले गए, किडनी ने उसको एक्सक्रीट कर दिया, दैट इज काइनेटिक्स. हाउ द ड्रग मूव्स is kinetics. So that we should be able to explain. If we are not able to explain this, then we are not fit for a globalized world. Then find out newer applications for existing drugs. हल्दी हमने वर्ण सुधारने के लिए लगाई है, हल्दी हमने जख्म भरने के लिए लगाई है, लेकिन क्या हल्दी सच में इम्यूनिटी इंप्रूव करती है? और करती है तो वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव. सो न्यूअर एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग्स. Find out newer Nidan and Samprapti. Maybe Samprapti is not changed, but the Nidan has definitely changed. Just as I was explaining in the first part of the lecture, there are a lot of newer factors which have come in. So we should know the important factors. जैसे मैंने कुष्ठ में बताया, कुष्ठ में one of the main factors, suppose you have a sun allergy. So if you have a sun allergy, what is the main factor to solve it? The main factor to solve it is stay away from the sun. But I am in the sun. मैं हाफ स्लीव्स पहनता हूँ, मैं ज़्यादा देर तक चलता हूँ, धूप में रहता हूँ. तो ऑल दीज इज अ पार्ट ऑफ निदान. कुष्ठ में बताया कि चोरी करने से निदान होता है. आज की तारीख में चोरी करने से किसी को कुष्ठ नहीं हुआ, या होता भी होगा तो हमें पता नहीं. बट वी हैव मोर पेशेंट्स हु आर having newer reasons for the same disease which used to happen earlier. So finding out new Nidan and Samprapti is also one important. We'll stop at this slide. So developing newer drugs for quality control. See,
we are having different, we source herbs from different areas. For example, मिर्ची जो है कश्मीर में भी आती है, मणिपुर में भी आती है, महाराष्ट्र में भी आती है, आंध्रा से भी आती है, साउथ से भी आती है. So which mirchi is more better? We have to have a quality control of drug. हींग जो है वो हींग इंडिया से भी आता है, अफगानिस्तान से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है. सो विच हींग इज बेटर, द बेस्ट क्वालिटी विच विल एक्ट द बेस्ट. So for quality control, we have to understand what is the quality control for drugs, and if we are making out any new drugs, suppose capsule नाम का चीज तो आयुर्वेद में कहीं नहीं है capsule. But if we are making a capsule of something, suppose we are making रस राज रस capsule, दूध पापेश्वर का एक कैप्सूल है रस राज रस. तो रस राज रस का अगर हम कैप्सूल बना रहे हैं तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. रसराज रस में जो भी चीजें पड़ी हैं, जैसे योगराज गुग्गुल है, त्रयोदशांग गुग्गुल है, या फिर दो तीन भस्म है, दीज आर ऑल नॉट न्यू. But then what we are going to introduce into the drug as a quality control, we are going to introduce humidity or moistness as a quality control. If we are giving it in a capsule, it should be totally moisture free. Totally moisture free. So we have to develop quality control methods for newer drugs which are coming. Last but not the least, we have to study the ancient and modern dietetic principles. Many a times, for example, in diabetes, we find that whatever the ancient science says, the same is said by modern science. There are, however, a few instances in which the modern dietetic science will say exactly the opposite of what Ayurveda says. I'll give you one or two examples and then we'll stop. For example, if you have Sandhiwan, what Ayurveda says that sprouts, sprouts, sprouts मतलब जो भिगा के रखते हैं उसको अंकुर आता है वो, तो sprouts कैन इन आर रुक्ष आर गुरु अग्नि मंद कर देती हैं और वात को बढ़ा देती हैं. तो इसीलिए संधिवात में स्प्राउट्स यूजुअली मना करते हैं. बट व्हाट मॉडर्न डायटीटिक्स सेज, मॉडर्न डायटीटिक्स सेज दैट स्प्राउट्स लेने से प्रोटीन बढ़ जाता है. प्रोटीन लेने से क्या हो जाता है कि you have lot of protein in the muscles, your ligaments become strong, and that is why that will help you in your sandivat. So there are some instances where the modern science will go side by side. There are some instances where we will have a perfectly opposite view. So don't we need to analyze and understand whether Ayurveda was true in current science, Ayurveda was true in current science, or modern science के हिसाब से that was more true, right? So all this is a need of research. Need of research पे question आएगा तो you can write a lot. So if you have no issues any further, what we do is I will stop